Morning students, today I discuss the chemical properties of aldehydes, ketones. Okay, aldehydes undergoes nucleophilic addition reaction. Aldehydes, aldehyde and ketone undergoes nucleophilic addition reaction. Explain why. Okay. In aldehyde and ketone contains carbonyl group. Ketone contains carbonyl group. Oxygen is more electronegative than carbon. So oxygen gets minus delta charge and carbon gets plus delta charge. Okay. So nucleophile will attack at carbonyl carbon atom. Just for nucleophile is Cl minus, it is nucleophile, or Nu minus nucleophile will attack at carbonyl carbon atom. First step, slow step, first step first. Okay, in step second, this is fast and H plus ion. This addition product. Okay. So aldehyde and ketones undergoes nucleophilic addition reaction because an aldehyde and ketone contains carbonyl groups. In carbonyl groups, oxygen is more electronegative than carbon. Oxygen gets minus delta charge and carbon gets partial plus delta charge. So nucleophile will attack at carbonyl carbon atom. Okay, hence aldehyde and ketones undergoes nucleophilic addition reaction. Next question is arises: aldehyde is more reactive than ketone towards nucleophilic addition reaction. Okay. Okay. Aldehyde contains one alkyl group. Both contain carbonyl group, and ketone. This is your ketone. Okay. Aldehyde contains one alkyl groups, and ketone contains two alkyl groups. Two substituent is attached at carbonyl carbon atom, ketone. Okay. अब ये दो इसमें सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप लगा, तो इसमें पहला फैक्टर जो होगा एस्टेरिक हिंड्रेंस, एस्टेरिक factors. Okay, due to presence of two substituent on ketone, the alkyl group is अब इसमें क्या हो जाएगा, the reactivity of carbonyl carbon reduce and attack of nucleophile becomes more difficult. कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो है बल्कि ग्रुप होने के कारण न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन कीटोन अल्डिहाइड में ओनली वन अल्काइल ग्रुप, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसमें बहुत इजी हो जाएगा और कीटोन में नहीं होगा क्योंकि इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है कार्बोनिल कार्बन एटम पे डिफिकल्ट होगा। दूसरा फैक्टर्स है इसका दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए दूसरा फैक्टर से इसका रीजन का इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब कीटोन में देखिए
कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप्स है, जैसे कीटोन, और एल्डिहाइड में only one alkyl groups. Do you know alkyl groups are the electron donating groups? Alkyl groups are the electron donating groups. माइनस डेल्टा चार्ज प्लस डेल्टा चार्ज, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन पूलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। The electron density on the carbonyl carbonyl increases. In ketone, two alkyl group is present, which is electron donating groups, okay, due to plus inductive effect, electron density on carbonyl carbon atom, यानी CO का कार्बोनिल कार्बन एटम क्या है, CO में कार्बन, ओके, कार्बोनिल ग्रुप CO होता है, उसमें कार्बन एटम, कार्बोनिल कार्बन एटम इंक्रीज कर जाएगा। जब इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक मोर डिफिकल्ट होगा। सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल becomes more difficult compared to aldehyde which contain one alkyl group, okay। तो ये टू रीजन है, aldehyde is more reactive than ketone towards nucleophilic nature। पहला फैक्टर आता है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप होता है, और जिसके कारण बल्की ग्रुप होने के कारण कार्बोनिल कार्बन एटम की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट। लेकिन कीटोन में एल्डिहाइड में ओनली वन अल्काइल ग्रुप्स है, तीसरे न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसमें बहुत इजी हो जाएगा, ओके। दूसरा फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट। एल्डिहाइड में दो अल्काइल ग्रुप, कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप्स है, अल्काइल ग्रुप, और एल्डिहाइड में ओनली वन अल्काइल ग्रुप है, ओके। तो कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप्स जो है, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो इसमें कौन सा इफेक्ट काम करेगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा आपका, और जो है सो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अल्काइल ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन के ऊपर इंक्रीज कर जाएगा। जब इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक मोर एंड मोर डिफिकल्ट होगा, ओके। और एल्डिहाइड में ओनली वन है, तीसरी इजियर हो जाता है। तो ये टू आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, और ये आपका ये क्वेश्चन, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अब देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्वेश्चन इज arises benzaldehyde is less reactive than propanol। क्यों है बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव, क्यों है? अब देखिए, फर्स्ट यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में क्या हो, कार्बोनिल कार्बन एटम की जो बेंजल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन एटम का जो है रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा ड्यू टू रेजोनेंस। बेंजल्डिहाइड रेजोनेंस शो करेगा, यानी रेजोनेंस शो करेगा। अब देखिए ये रेजोनेंस है, ये यहां मूवमेंट करेगा, ये ऐसे करेगा,
तो देखिए सिंगल बॉन्ड O माइनस हो जाएगा H, आई एम सॉरी CH C होगा, C सिंगल बॉन्ड O, फिर जो हो जाएगा डबल बॉन्ड ये हो जाएगा O माइनस और ये H। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन का इससे ट्रांसफर होगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस ये, फिर डबल बॉन्ड CO माइनस और H, ये फिर अगेन ये, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है ये ऐसे हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, डबल बॉन्ड CO माइनस H, ओके। और फाइनली जो होगा ये यहां से हो जाएगा, फिर ये पुनः ऐसे आ जाएगा डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड CH, ये रेजोनेटिंग। The benzaldehyde is less reactive. In benzaldehyde, the reactivity of carbonyl carbon is reduced due to resonance. Reactivity of carbonyl carbon atom का reduce हो जाता है due to resonance, okay? लेकिन प्रोपेनल में ऐसा नहीं होगा। प्रोपेनल जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा, ओके? इसलिए उसका वो जो है सो आपका मोर रिएक्टिव होगा बेंजल्डिहाइड। So benzaldehyde is less reactive than propanol. देखिए अब आएगा आपका एडिशन रिएक्शन। पहला है एडिशन ऑफ HCl हाइड्रोजन साइनाइड, RCHO प्लस HCl। तो क्या होगा, H ऑक्सीजन के साथ Cl यहाँ पे अटैक करेगा, RCHOH Cl साइनोहाइड्रीन कंपाउंड बन जाएगा, साइनोहाइड्रीन बन जाएगा कंपाउंड आपका। OH और Cl, OH Cl किसी कंपाउंड में लगा होगा, इस कंपाउंड को बोलेंगे साइनोहाइड्रीन। अगर कीटोन में होगा, अगर एसिटल्डिहाइड में होगा, एग्जांपल से एसिटल्डिहाइड प्लस HCl, तो अब ये हो जाएगा आपका CH3 CHOH Cl। दिस कंपाउंड इज नोन एज 2-hydroxy nitride, 1 2 3 2-hydroxy nitride. This is the IUPAC name of this compound, propane nitride, okay? Or suppose you have asked conversion ethanol to lactic acid, CH3 CHOH COH. How can you change ethanol to lactic acid? इथेनॉल से लैक्टिक एसिड कैसे बना? अब देख लीजिए, पहले क्या करेंगे, इथेनॉल है, इथेनॉल को HCl से कर देंगे, हाइड्रोजन साइनाइड से कर देंगे रिएक्शन, ओके? तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CHOH Cl, साइनोहाइड्रीन बन गया कंपाउंड, साइनोहाइड्रीन। कौन सा कंपाउंड बन गया ये? साइनोहाइड्रीन। अब साइनाइड का हम कंटिन्यूअस हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो पहले अमाइड बनेगा और अमाइड अगेन हाइड्रोलाइज करके आपको एसिड में चेंज कर दो। CH3 CHOH बन जाएगा CONH2, अमाइड बन गया। फिर अगेन हाइड्रोलिसिस करेंगे इसको, तो फाइनली जो है यहां से देख लीजिए OH और H अमोनिया निकल जाएगा और बन जाएगा आपका CH3 CHOH COH. This compound is known as lactic acid and IUPAC name is 1,2,3 2-hydroxypropanoic acid. 2-hydroxypropanoic
प्रोपानोइक एसिड. This is IUPAC name of lactic acid. 2-hydroxypropanoic acid is the IUPAC name of lactic acid. कीटोन में भी होगा ये रिएक्शन, देख लीजिए सिमिलरली होगा क्योंकि बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप. कीटोन में देख लीजिए हम ले लेते हैं एसीटोन, ले लेते हैं एग्जांपल CH3COCH3 प्लस HCN, क्या हो जाएगा आपका CH3OHCN, साइनोहाइड्रीन. क्या कंपाउंड का नेम होगा? साइनोहाइड्रीन. साइनोहाइड्रीन कंपाउंड. ठीक है. दूसरा देख लीजिए, एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड. सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. क्या हो जाएगा? RCHO प्लस NaHSO3. अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला जाए तो ये बन जाएगा कंपाउंड RCHOHSO3Na. ये बन जाएगा. इसको बोलेंगे सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड. सोडियम बाइसल्फाइड ऑफ अल्डिहाइड. अल्डिहाइड का एडिशन प्रोडक्ट हो गया सोडियम बाइसल्फाइड ऑफ अल्डिहाइड. कीटोन में भी होगा सिमिलरली, देख लीजिए NaHSO3 तो क्या हो जाएगा आपका ROHSO3Na. इसको बोलेंगे कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड्स ऑफ कीटोन. सोडियम बाइसल्फाइड ऑफ कीटोन. तो ये आपका एडिशन रिएक्शन हो गया. ओके. आगे का जो केमिकल रिएक्शन होगा ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.